Assalamu alaikum everyone. My name is Paris Safar and I'm doing my master's in International Humanitarian Law and Human Rights from Geneva Academy, situated in Switzerland. And in this video, I'm going to share one of the biggest milestones of my life, and that is how I got a fully funded scholarship to study this master's in the Geneva Academy. So if you're planning to study abroad, this video is for you. And in future, I will also share videos about not only masters, but also about bachelors and what sort of scholarships are available in Swiss universities, even for the bachelor students as well. Before I start, I want to share that why I decided to make this video, and there are two reasons for that. First of all, I have been receiving hundreds of messages from students asking about how I managed to secure this scholarship, and it's not possible to respond to each and everyone individually, so I thought to make one detailed video for everyone. And secondly, right after my admission, when I had to go through various steps, like I had to verify my degree, my metric inter documents, and then to apply for the visa, I realized that I could not find a single helpful video about the Switzerland. Like there were a lot of videos about Germany, Italy, or USA, but nothing specific about Swiss universities specifically. So I promised myself to share my personal experience about whole process right from admission to the visa. Okay, so a bit about myself. I have done my LLB from University of St. Jamshoro in 2022, and during the studies I have been involved with a lot of mooting. So this is why I developed a specific interest about IHL in human rights. Uh, and this is the reason why I chose Geneva Academy, because Geneva Academy is, a renowned institution when you talk about IHL. After my LLB, I served as a judicial law clerk in Supreme Court of Pakistan for the 2 years, and now I'm here studying my master. So आप में से जिसने IHL से related moods में participate किया है, you all know कि what is Geneva Academy and why it is so important when it comes to IHL. But for those जिन्होंने participate नहीं किया mooting में and they are new to this, Geneva Academy, उनके लिए मैं briefly introduce करूँगी. So Geneva Academy is basically a joint center of University of Geneva and Geneva Graduate Institute. That means we are considered students of both of these institutions. Like we have our student cards for University of Geneva and also for the Graduate Institute, and also we can access to libraries of both of these institutions, and we have our classes at both of these institutions, so depending upon the subject. अच्छा, तो जिनेवा अकेडमी में बेसिकली दो तरह का मास्टर्स होता है. फर्स्ट इज़ मास्टर्स इन IHL एंड ह्यूमन राइट्स, जो कि मैं कर रही हूँ, एंड सेकेंड इज़ मास्टर्स इन ट्रांजिशनल जस्टिस, that is called MTJ. So if you are more interested in IHL, then you should go for IHL masters, and if you are interested in transitional justice and human rights more, then you should go for the MTJ. दोनों प्रोग्राम्स की एप्लीकेशन जो है वो साथ में ही ओपन होती हैं. दोनों के लिए जो है वो आप स्कॉलरशिप ट्रैक से भी जा सकते हैं, विदाउट स्कॉलरशिप भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों की डेडलाइन ऑलमोस्ट सेम होती है. सो एप्लीकेशंस जो जेनेवा अकेडमी की अभी ओपन होंगी इसी दोनों प्रोग्राम्स के लिए, वो आई गेस 1 नवंबर को एप्लीकेशंस ओपन होंगी, एंड देन जनवरी तक जो है वो आपकी डेडलाइन होती है. लाइक जब मैंने अप्लाई किया था तब मेरी डेडलाइन थी 15 जनवरी फॉर स्कॉलरशिप ट्रैक. तो अगर तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनवरी में ही अपनी एप्लीकेशन तैयार करके सबमिट करनी पड़ेगी. बट इफ़ यू वांट टू गो विदाउट स्कॉलरशिप, देन आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा टाइम होता है. लाइक नॉन स्कॉलरशिप के लिए उनका आई गेस फ़ेब या मार्च में जो है वो डेडलाइन होती है. तो आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है और इसी साल करना है, तो आपको कुछ जो है वो मतलब स्टेप्स हैं जो कि आपको एप्लीकेशन ओपन होने से पहले आपने करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ आइल्स. लाइक आपने आइल्स या टॉफल जो है वो देना है, और अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं इन जिनेवा अकेडमी, तो आपका मिनिमम जो बैंड स्कोर होना चाहिए वो 7.5, बिकॉज़ जिनेवा अकेडमी 7 को भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता. जब तक आपका 7.5 मिनिमम स्कोर नहीं होगा तब तक यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. सो फोकस ऑन द आइल्स. आप कोशिश करें कि आइल्स की तैयारी करके अच्छे से, और आप जो है वो
7.5 तक बैंड लाएं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जिनेवा अकेडमी और स्विस यूनिवर्सिटीज़। बट अगर तो आप जर्मनी इटली में अप्लाई करना चाहते हैं तो आई थिंक 7 इज़ मोर देन इनफ। सो आफ्टर after the IELTS, a second step is to verify your degree and your metric and inter documents. तो आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है आप उसको वेरीफाई करा लें हायर एजुकेशन कमीशन से, एंड देन जो आपके मैट्रिक एंड इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने वेरीफाई कराना होता है फ्रॉम IBCC। एंड जब ये दोनों वेरिफिकेशन हो जाएंगी तो उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपोस्टाइल कराने होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड in Geneva Academy or other Swiss universities or even Germany or Italy, अपोस्टाइल्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी होते हैं, और आपका अपोस्टाइल तब तक नहीं होगा जब तक आप ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराते फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन एंड IBCC। और उनके प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, तो वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि किस तरह से आपने HEC से डिग्री वेरीफाई करानी है और किस तरह से IBCC के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने, उसके लिए आई विल ट्राई टू मेक अ डिफरेंट वीडियो। सो इवन इफ़ जिस अकेडमी में मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ेज़ के ड्यूरिंग मतलब ये अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने करवा लिए बिकॉज़ जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाके जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं या इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी लीगल वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक कि वो अपोस्टाइल्ड नहीं होते। सो दैट्स व्हाई इट्स मैंडेटरी। और अगर तो आप जर्मनी या इटली के लिए कर रहे हैं तो इटली के लिए तो आई नो फॉर श्योर कि आपको अपोस्टाइल के बगैर यू आर नॉट इवन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वीज़ा। सो दैट्स मैंडेटरी स्टेप, और अच्छा है अगर आप शुरू में ही करवा के रख लें तो, बिकॉज़ ये प्रोसेसेस बहुत लेंथी होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस के जिनेवा अकेडमी के लिए स्पेसिफिकली आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करके रखने हैं इन एडवांस, क्योंकि जिनेवा अकेडमी के लिए जो दोनों मास्टर्स मैंने बताए इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम 1st ऑफ नवंबर, और डेडलाइन अभी इन्होंने मेंशन नहीं की हुई है अपनी वेबसाइट पे। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एटलीस्ट वो आप तैयार करके रख लें, तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी तो आप जो है वो उस हिसाब से कर लें। सो सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ योर CV। So you need to draft your CV comprehensively, और जितनी भी आपकी जो relevant मतलब experiences है ना, तो इफ़ वो आप मेंशन करें। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर IHL, तो IHL से रिलेटेड जितने भी आपके relevant experiences हैं आप वो मेंशन करें। आपने मूटिंग की हुई है, आपने जो है वो कोई इंटर्नशिप की हुई है ICRC वगैरह में, या आपने कोई भी मतलब ISL से रिलेटेड कोर्स किया हुआ है तो वो आप हाइलाइट करें, ठीक है? एंड देन जो आपकी दूसरी चीज़ें हैं वो आप भले एंड में जाके लिख लें। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द MTJ, तो उससे रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी CV बनाएँ। बिकॉज़ आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि एक ही CV बना के रख लेते हैं और फिर हर किसी चीज़ के लिए वो ही CV जो है वो सबमिट करते हैं। तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट, बिकॉज़ आपकी CV जो है वो टेलर्ड होनी चाहिए टू स्पेसिफिक प्रोग्राम। सो इफ़ इट्स IHL, you should demonstrate your interest in IHL, your work experience in IHL, your publications in IHL. But if you are interested in MTJ, then उससे relevant जितने भी experiences हैं वो आपने mention करने हैं। सेकेंड थिंग इज़ कवर लेटर। अब जिनेवा अकेडमी के लिए ये जो कवर लेटर मांगते हैं उसमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इस क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए अपना तो जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि हाउ यू हैव टू ड्राफ्ट योर कवर लेटर। उसमें मेनली यही होता है कि आप अपनी स्टोरी बताएँ, लाइक व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन IHL, और IHL में LLM करने के बाद अब आगे आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या करना सो डॉक्यूमेंट्स में पहले CV, कवर लेटर, एंड थर्ड पे है 2 आपके रिकमेंडेशन लेटर्स। सो अपने रिकमेंडेशन लेटर आप अपने किसी सुपरवाइज़र से, प्रोफ़ेसर से या करंट या प्रीवियस एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। और रिकमेंडेशन लेटर जनरलाइज़्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सा एक जनरल रिकमेंडेशन लेटर पेश कर देते हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।
आपका जो रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, लाइक उसमें आपका प्रोफेसर या सुपरवाइज़र ये मेंशन करे कि मैं इस बंदे को कब से कब तक जानता हूँ, किस कैपेसिटी में जानता हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर तो आपने उनके साथ काम किया है तो वो उस काम के स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स दें कि फॉर इंस्टेंस ही और शी असिस्टेड मी इन दिस एंड दिस टास्क, और उन्होंने किस तरह से असिस्ट किया, कौन-सी स्किल्स हैं इनके पास एंड ऑल दैट। तो मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए रिकमेंडेशन लेटर। अगर तो जनरल होगा तो लाइक इट विल नॉट कैरी दैट वैल्यू जो कि एक स्पेसिफिक लेटर कैरी करता है। एंड उसके बाद है आपका जो है वो जितनी भी डिग्रीज़ आपने की हुई हैं या आपने जो मैट्रिक इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी कॉपीज़ आपने सबमिट करनी होती हैं, तो वो भी आप एक पीडीएफ में स्कैन करके बना के ऑलरेडी रख लें। एंड देन आपका होता है आइल्स। आइल्स का मैंने जैसे बताया कि अगर तो आपने जिनेवा अकेडमी में करना है तो मिनिमम 7.5 बैंड आपका ज़रूरी है। एंड देन आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो प्रूफ ऑफ इनकम होता है, आपने अपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराने होते हैं, अपने फादर या गार्जियन के बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराने होते हैं, ये शो करने के लिए कि यू डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स। और जो एप्लीकेशन होती है उसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी होता है कि व्हाई यू शुड बी ग्रांटेड दिस स्कॉलरशिप। तो उसमें भी आपने मतलब एक कन्विंसिंग रीज़न्स लिखने हैं कि व्हाई आई शुड बी अवॉर्डेड दिस स्कॉलरशिप। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट हाउ आई गॉट द स्कॉलरशिप एंड कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन बनानी होती है। और उसके बाद जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग सीवी, आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स किस तरह से होने चाहिए, और जो आपका मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर है वो आप किस तरह से ड्राफ्ट करें कि वो एक जो है वो रीडर को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। तो उसके लिए जो है वो मेबी आई विल मेक अदर वीडियो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर जिनेवा अकेडमी, आप अपनी तैयारी जो है वो अभी से कर लें बिकॉज़ एप्लीकेशंस ओपन होने में कोई ज़्यादा वक़्त नहीं है। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं एटलीस्ट जो आप अभी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे आप अपनी सीवी अभी बना सकते हैं, आप अपना कवर लेटर अभी लिख सकते हैं, या आप अपने जो है वो रिकमेंडेशन लेटर अभी बनवा सकते हैं, या जो है वो आप आइल्स अभी देने की जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो आप अभी से कर लें जब तक ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होती। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको जो है वो जितनी भी डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होती हैं, और किस-किस तरह से आपने एप्लीकेशन फिल करनी होती है, दैट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बट इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस आई एम हियर। और उसके अलावा जो प्रोसेसेस हैं रिलेटिंग टू डिग्री वेरिफिकेशन, आईबीसीसी वेरिफिकेशन, उसके लिए आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ एज़ वेल। सो इट वाज़ ऑल अबाउट जिनेवा अकेडमी कि उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आपने कैसे जो है वो शुरू से ही तैयारी करके रखनी होती है। और जब तक बात है अदर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे इटली हो गया या जर्मनी हो गया, उनके लिए भी आई विल ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियोज़ कि जर्मनी में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं, और इटली में किस-किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन-सी स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल होती हैं, नॉट ओनली फॉर मास्टर्स बट ऑल्सो फॉर बैचलर्स एज़ वेल। और यहाँ स्विट्ज़रलैंड में आने के बाद मुझे पता चला है कि यहाँ पे दूसरी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो आई विल ट्राई टू कवर दैट एज़ वेल फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स बोथ, क्योंकि यहाँ पे बैचलर्स के लिए भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं। तो अगर तो आपने यहाँ पे 4 साल का आके बैचलर्स करना है और उसके लिए अगर आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है, so that would be an amazing opportunity. So that's all. Thank you very much, and I hope कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी when it comes to applying for universities abroad.